All right. Yes, that is good. Okay, ठीक है, sir. perfect. So I am trying to go from the beginning again. See, Telangana Engineering College's predictor. So I am trying to start like a layman who don't know anything, and I have no idea what engineering college admission means. That is how I am starting. Okay. So if I start from here, go to college predictor and enter my rank 56,000, and it is BCE category, and the course is BE or BTech, and checking the results. So I got different colleges, metallurgical engineering in JNTU and etc. etc. And I found here Matrusri Engineering College can give me a electronics and communication engineering. No, no, Maturi Venkat Subbarao, but there is a Matrusri here which is going to give me computer engineering because my course interest is computer engineering, right? I have a bigger rank, I know, 56,000. For that rank, I'm not going to get computer engineering from top colleges. But one of the best college is Matrusri, which is really old college. It has a lot of history. And in that college, I'm able to get computer engineering. So what I'm going to do is I'm going to do more research about this course, more research about this college, and I'll try to fix myself. This is the college I'm going to get the admission, Matrusri Engineering College, number one. So what I'm going to do is I can go to Matrusri Engineering College website and find out what kind of syllabus they have. So this is Matrusri Engineering College website. On their website, they have a syllabus information posted here. I will click this link. I'll go to this PDF and I will read through this PDF to understand what all different subjects they are offering as part of computer engineering, right? I can also go to find out who are the professors in Matrusri Engineering College. So here, if you see, there's a faculty, facilities. This is facilities, department, admissions. They have faculty information here. Some of the, yeah, there is a faculty here. So if you go here, you will be able to see who are the faculty, who is going to teach me, who is going to take my classes when I join this college. Okay. Let's make a little bigger. So assistant professor in physics, assistant professor in mathematics, assistant professor in chemistry, assistant professor in English, assistant professor in some other departments. And for example, if I have doubt about this person, I can go and see what are the details. He did assistant professor, MSc, experience, 15 years of experience. So this is step one, research. Step two, research, what we can do is we can go to the college and talk to the previous students. If you already know some previous students, you can talk to them. But if you don't know the previous students, you can go to the college and try to meet the people. And even you can go to college and ask them, I'm trying to understand more about this college. Can you tell me more about your college? So they can tell you whether they have any campus placements, how many campus placements they are doing, what kind of labs they have, who are the professors, what kind of teaching methodology they have, what kind of results they have received in last 5 years, 10 years, and how old is that college, how big is that college, how safe is that college, and how far that college is from your home, and do they have any transportation facility to go to college, maybe bus or something. Otherwise you have to buy a bike, you might have to take a bus pass. All this research you have to do before you choose the college, because
Once you choose the college is permanent for 4 years. Next 4 years, you just have to continue in that college, even if you don't like it or not like it. And your future is associated with that college, and you are investing a lot of money also. Every day you are going to college, you are spending your time. So do all the research before you finalize the college. You have almost 15 days or 1 month of a time right now. The counseling did not start. The whole reason of today's session, today's webinar is I'm trying to prepare yourself before we start the counseling, actual counseling. Because once the counseling starts, we have to finish the counseling, we have to finish the college choices and everything, right? Any questions so far? कुछ क्वेश्चन है पूछने का? हेलो। यस। अस्सलाम वालेकुम फसी साहब। हाँ जी, वालेकुम। इसी सिलसिले में पूछना है या नेक्स्ट क्वेश्चन आना है हमको? कुछ भी पूछ सकते, पूछो। अच्छा फसी भाई, देखिए, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर माय सन गॉट रैंक 69,717 717। एक मिनट, अभी अभी फिर से बोलिए। 67,000 69,000 69,000, हाँ। एग्जैक्टली 717। 717। यस। और जे ईडब्ल्यू में है? नहीं नहीं, वही 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 सवाल पे आना था। नहीं, हम का वी कम अंडर ओसी कैटेगरी। ओके, जनरल, ओके, ठीक है। General category. And also while applying the MSET, this thing we have opted local. ठीक Okay. ठीक He studied 10th up to 10th here in Saudi Arabia, Dammam. ठीक ठीक है। Later he joined his 12th intermediate in Sri Chaitanya, and from there he got pass and he got around 96.7% in intermediate. ओके, ठीक। Okay. So now and he is interested in doing AIML only. ओके, ठीक है। Just go ahead if any chances are there in getting a good. राइट, तो आपका जो रैंक है जी 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 69,717 एंड जनरल कैटेगरी, एग्जैक्ट एंड मैं यहाँ पे है ना एग्जैक्टली चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। जी तो इट्स जी Wasi bhai, 1 minute. Wasi bhai, can you hear me? Now Mahmood here. बोलिए। हाँ महमूद भाई। जी। नहीं, अभी सर का जो क्वेश्चन था, क्यूरी थी, ही सेड द 10th एजुकेशन वाज डन इन मिडिल ईस्ट, राइट, इन सऊदी, राइट, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एंड देन इंटरमीडिएट यहाँ से करेगा। एंड हिज क्वेश्चन इज कि भाई, विल ही बी काउंटेड इन ए लोकल कोटा और अ नॉन लोकल कोटा? करेक्ट। राइट। Yes, so it will be a non-local quota, because for local quota you need to have a bona fide from 7th standard, ओके ओके। and some colleges also require quota for bona fide from 6th standard. Right. So you just No, need to what- verify with the college and make it transparent to them that this is my situation. You need to physically check with the college itself. No, one thing, brother. See, while applying for the application, they have asked whether you want to apply for local under. So under the local, they asked to produce a domicile certificate for parents. So Okay. now अभी वही पूछना है मुझे, क्योंकि इसका 10th का एजुकेशन पूरा 1st से 10th तक यहाँ पे हुआ है, और हमारी पूरी एजुकेशन तो हैदराबाद में हुई, उस्मानिया सिटी में हुई है। ठीक है। So अभी इनफैक्ट आई हैव अप्रोच्ड द लॉर्ड्स आल्सो। लॉर्ड्स वो लोग बोले कि डोमिसाइल कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के। दैट वाज इन द केस इन ऑफ माय अर्लियर सन, फर्स्ट लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये सेकंड सन है मेरा ये। नहीं तो फर्स्ट सन का सिचुएशन भी सिमिलर सेम था आपका? सेम वो भी, दोनों भी मेरे पूरे तीन उनको एडमिशन मिल गया लोकल कोटा में? हाँ, उनको एडमिशन जेई मेंस पे मिला। वासवी में बी कैटेगरी मिल गया विदाउट एनी डोनेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो क्योंकि अगर आपके सन को मिल गया है तो आपके पास केस स्टडी रेडी है, सो यू डोंट नीड टू रीवेरीफाई। अगर कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो चेंज हुई नहीं, होगी वो गवर्नमेंट जेई मेंस के बेसिस पे मिला था। तो फिर अब क्या सिचुएशन है? जेई मेंस में नहीं आया इनका रैंक? अभी एमसेट इनका जेई मेंस में इन्हों नहीं करे, इट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। जेई मेंस नहीं लिखे नो, खाली एमसेट लिखे बस। तो फिर ये केस को फिर से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये एमसेट के बेसिस पे लोकल कोटा मिलेगा या फॉरेन कोटा मिलेगा। नहीं, जब एप्लीकेशन भर रहे थे ना, वहां पे उन्होंने मेंशन कर दिया था टैब में, कोई मैं समझता हूँ उस पे मेंशन करें, मगर डॉक्यूमेंटेशन तो सबमिट नहीं करे ना आप।
नहीं 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 करे, वो तो एट द टाइम ऑफ आपके हाँ, जो तो आपके वो पास डॉक्यूमेंटेशन अगर है डोमिकल सर्टिफिकेट तो दैट्स वो डिफरेंट। वो तो अगर निकाल रहा हूँ मैं नहीं है तो इंशाल्लाह, फिर ओके। ऑप्शन बी क्या है आपको चेक करना पड़ेगा। ओके फाइन फाइन। दैट्स इट, कंटिन्यू फॉर, दैट, थैंक यू। चलिए थैंक यू। राइट, तो अभी यहाँ पे है ना, अगर आपको लोकल में मिल रहा है समझो, तो दिस इज द चॉइसेस यू हैव। सीएमआर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकती, एमएलआर में मिल सकती, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मल्लारेड्डी में मिल सकती, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वासवी में मिल सकती है। सो दीज आर द चॉइसेस यू हैव। लेकिन आप जैसा थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि है ना, वो कॉलेज एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, वी कैन अप्रोच द वासवी कॉलेज और सीएमआर कॉलेज और मल्लारेड्डी, जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। एक बार वहां पे भी अगर पूछ लिए तो हमारे को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि है ना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता है बोल के। अगर बाद में है ना लास्ट मोमेंट में पता चला कि नहीं होता, तो देन वी हैव टू स्टार्ट द रिसर्च फ्रॉम द जीरो। ओके राइट। ओके ओके फाइन, चलिए चलिए, और थैंक्स थैंक्स, कॉलेज से इट्स ये भी क्लियर। पूछ सकते हैं कि है ना, हमारे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए क्या, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को। हम्म। बोनाफाइड्स तो ये 12 का 11 12 का तो यहाँ से मिल जाएगा वासवी का। वही मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ। बच्चे को बोला है मालूम करो, तो ई सेवा सेंटर पे गए हैं। हम्म। अभी आई हैव फॉरवर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई आस्क्ड देम टू गेट अ डोमिसाइल, आई थिंक वो कर रहे हैं, कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं मी सेवा सेंटर वाले। राइट। मदर कॉलेज विल एक्सेप्ट और नॉट, आई डोंट नो। और ये अपने तेलंगाना गवर्नमेंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशन, दैट आई डोंट नो। वो तो उसमें एक बार कॉलेज 70%। अगर एक्सेप्ट कर रही समझो, देन नो वन इज जी गोइंग जी, टू स्टॉप अस, राइट। no one is going to stop us. Khalas. That will be better option to go approach them and do that. या। Fine. और सर सेकंड, ये जो बी कैटेगरी आता है, बी कैट इन केस इसमें नहीं मिला तो बी कैटेगरी में कौन से कॉलेजेस में चांसेस है मिलने के, कुछ उस पे वो दे सकते हैं जनरल। बी मींस मैनेजमेंट कोटा। जनरल कैट, हाँ मैनेजमेंट कोटे में। मैनेजमेंट कोटा क्या है, वो तो मैनेजमेंट की मर्जी है। इट्स लाइक क्या बोलते हैं, कोई अपना आम बेच रहा समझो, अब वो 4 रुपए में बेच हाँ सकता है, 400 में बेच सकता है। नहीं, वो मैनेजमेंट कोटा वैसा तो मैं समझता हूँ बेच नहीं सकते कुछ, क्योंकि जो लास्ट ईयर एक काउंसलिंग में एक केस ऐसा है, जो बच्चा लिया है वासवी में, हाँ। वो बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट सीट बच गई तो वो तो बेचे कुछ नहीं वो तो मैं क्वालिफाई नहीं हुए जैसी बात है वो। यहाँ पे है ना, यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, यू हैव ए रैंक, एंड बेस्ड हाँ ऑन दैट रैंक दे आर गोइंग टू गिव यू ए मैनेजमेंट कोटा सीट। अब तुम्हारा अगर रैंक अच्छा है, कोई दूसरे कॉलेज में तुम्हारे को एडमिशन मिल सकता है, तो वो लोग है ना उतने ज्यादा जी पैसे डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन नहीं तुम्हारे पास करता, में हाँ रैंक नहीं है, तुम क्वालिफाई भी नहीं हुए, तो वो लोग बोलते कि मेरे को 25 लाख रुपए दियो, बोल तो देना पड़ता। जी जी, चलिए ठीक है, फाइन फाइन, थैंक यू, वो Because क्लियर हो you गया। have a rank, there is a यस possibility if they ask too much money, you are going to go to another यस, college. ओके। तो मैनेजमेंट कोटा है, वो मैनेजमेंट की मर्जी है वो कितने में बेचना चाहती है। लेकिन हर फिक्स कॉलेज जैसा की। फीस एनआरआई के कोटे के फिक्स है, उनका गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स है ना यानी आपकी फीस वगैरह स्ट्रक्चर, अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन दे विल आस्क और व्हाट। यस, मैनेजमेंट कोटा में जो है आपको कॉलेज को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अथॉरिटी रहती है। ओके सो बेस्ड ऑन द रश दैट दे हैव, अगर सीट्स ओके, कम है और बच्चे ज्यादा है तो लोग डिमांड करते हैं। तो इट्स ऑल बिजनेस दैट टाइम। खलास खलास खलास, So the क्लियर, इट्स early क्लियर you नाउ। go, it's better. The early you go, it's better That for will, them, yeah, yeah. for That's you. that's right. Yes, yeah, that's right. That's right. That's true. Okay, thank you, thank you. Now cleared my doubt. वो बात है। और दूसरी चीज ये जी है, अब समझो कि है ना, तुम बोलेंगे कि तुम्हारा कोई दूसरा 25 लाख में अगर वो सीट खरीदने तैयार है, तो मेरे को पांच जी लाख जी, में वो लोग क्यों देंगे। हो सकता है वो लोग नहीं तुम्हारे दे, को 5 लाख में देंगे, 25 लाख वाले को नहीं बोलेंगे, बिकॉज यूर जी स्टूडेंट हैज ए रैंक। तुम्हारे बच्चे को रैंक क्वालिफाइड, आया है, तुम्हारा बच्चा है ना एंट्रेंस ओके, एग्जाम लिखा है, एंड ही प्रूव्ड जी कि जी है जी ना मेरे को इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, मेरे को इतना रैंक है। तो उन लोगों का जी एक्सपेक्टेशन जी ये होता है कि है ना, अगर कोई ब्राइट बच्चे को अगर सीट दिए, तो वो है ना जी जी, अच्छे मार्क्स से पास करेगा, उसको प्लेसमेंट मिलेगा, तो उनके कॉलेज का भी नाम रोशन होता। ओके फाइन, तो समटाइम्स सम कॉलेजेस प्रेफर टू build their brand and take give the admission to brightest student। करेक्ट, राइट, एक 25 साल पहले की बात है, हम जब कॉलेजों में थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। देर जी वॉज जी, वन स्टूडेंट, ही वॉज गेटिंग ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन मुफखमजा कॉलेज। एंड ऑन दैट हम्म, डे मुफखमजा कॉलेज सेड, तुम हमारे पास एडमिशन क्यों नहीं ले रहे, वहां पे क्यों ले रहे हैं तुम। तो उन्होंने बोले नहीं भाई, मेरे पास में पैसे नहीं है। एमजे कॉलेज रिक्वायर्स 8,000 रुपीज फीस इन दोज डेज, वो जमाने में 8,000 रुपये फीस थी। ओके
तो उन्होंने बोले मैं बिल्कुल, 8,000 यस। रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें यूनिवर्सिटी में है ना मेरे को 100-200 में 500 में काम चल रहा है। हाँ तो सर। लोग बोले पूरी फीस माफ कर देते हैं हम, हमारे पास आके तुम ज्वाइन करो। राइट। द रीजन सही इज सही। द स्टूडेंट इज ब्राइट स्टूडेंट, दे नो अगर ये या बच्चों को हम एडमिशन दिए तो उन्हें है ना कुछ बन के निकलेंगे, बाद में है ना उनका कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। नाम रोशन। दे प्रेफर द ब्राइट स्टूडेंट्स आल्सो। ओके। मैं आपसे बाद में राजी हूँ फसी भाई, लेकिन जब के जमाने के लोग कंपैशनेट थे, रहमत और अदब और तहजीब थी, आजकल मार्केट कमर्शियल है, सो ही जस्ट नीड टू बी केयरफुल एज ए पेरेंट। राइट राइट, तुम कोशिश तो कर सकते ना। नहीं नहीं, कोशिश कोशिश को नहीं छोड़ना, लेकिन अपने आप को भी आगा रखना, पूरा भरोसा नहीं करना सामने वाले बोले का मतलब वो है। Yeah, so right now you have an option to go to like 4 different colleges, 6 different colleges and find out कि है ना देखो यस। भाई हमारे बच्चे का ये रैंक आया है, how much you are going to pay, how much fee I have to pay to get the admission. सीधी सी बात है, हाँ, everything on paper. बिल्कुल 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 करेक्ट। दैट्स फाइन, इट्स क्लियर है, क्लियर, थैंक यू सो मच। Right. और कोई दूसरे एडमिशन के बारे में कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम फसी सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये EWS सर्टिफिकेट मुझे एडमिशन के वास्ते काम में आएगा? नहीं, नहीं, क्यों बोले तो थोड़े लोग EWS सर्टिफिकेट में सर रिजर्वेशन कोटा में देते थोड़े कॉलेजेस, उसमें काम में आएगा? AWS सर्टिफिकेशन का कोई रिजर्वेशन नहीं है। कोई रिजर्वेशन नहीं, खाली कास्ट पे बेस्ड है शायद। राइट, तो तुम्हारे को मैं है ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक डाउनलोड करके रखा हूँ, जस्ट आई वांटेड टू शो पीपल के एडमिशंस की जो लास्ट ईयर की जो लिस्ट है। फॉर एग्जांपल MGIT कॉलेज की है ना 2025 की लिस्ट है, 2024 लास्ट ईयर की लिस्ट है ये। एंड इफ आई जूम दिस लिटिल बिट, तो यहाँ पे जो है ये CSC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट, ये OC BCA BCB हर कैटेगरी है। इसमें तुम्हारे को है ना AWS का सर्टिफिकेशन कहीं भी नहीं है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सन है, NCC है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, SC ST है, BC के पूरे कैटेगरीज हैं, फिर OC है। तो इसमें कहीं भी AWS का कोई रिजर्वेशन नहीं है। फसी भाई सर मैं EWS मेंशन है, EWS ही बोल रहा तो था। EWS ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसकी वीक बात कर रहा सेक्शन। हूँ। ओके, यस यस, जी इट जी, इज देयर। या वो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन है, यस। तो थैंक यू सर, थैंक यू। इकोनॉमिकली और भाई अगर है तो मेरा आपको है एक ना, सजेशन लेकिन है। लेकिन जो है वो EWS के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट और रेडी और अपडेटेड रहना, लेटेस्ट। राइट, यस, मैंने 3 दिन या लास्ट वीक ही मेरा EWS सर्टिफिकेट निकाला था, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट निकाला था परफेक्ट यही मंथ में। परफेक्ट परफेक्ट ओके, परफेक्ट, यप। क्योंकि ये थैंक यू। जब जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है और लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, 2 साल 4 साल पहले निकाले से नहीं चलता। मैंने यही मंथ मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स निकाल के साइड में आई एम रखे जस्ट टेलिंग, जो सब काउंसलिंग के लोग वास्ते। सब भी सुन रहे हैं ना, और भी लोग सुन रहे हैं तो बता रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। कुछ बोल रहे थे महमूद भाई? ओके, सो दैट्स फाइन। एनी अदर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, डिस्क्वालिफाइड एमसेट में डिस्क्वालिफाइड जो है BCE माइनॉरिटी, हाँ, तो उसमें ये जो 4 कॉलेज जो है, मतलब पहले तो एडमिशन मिल सकता क्या? अगर मिला तो इसमें ये दक्कन है, शादान, MJ और शाह आलम जैसे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है क्या? डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि हर साल पर लास्ट 2-3 इयर्स हम ये देख रहे हैं कि जब पूरा साल पूरे एडमिशन खत्म हो जाते हैं, काउंसलिंग के है ना फेज 1 फेज 2 फेज 3 पूरे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जी में उनके पास में सीट्स खाली रहते हैं, बाकी रहते हैं, देर आर सम सीट्स लेफ्ट ओवर। अब उन लोगों को है ना वो सीट खाली रखने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई जी बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, कोई एग्जाम भी नहीं लिखे, अगर वो लोगों को है ना एडमिशन देना है तो वो लोग ना दे देते हैं, क्योंकि दे नीड फीस, उनको फीस चाहिए, कॉलेज चलाना है, उस वो प्रोफेसरों को उन लोग हायर करे हैं, क्लासरूम्स बना के रखे हैं, लैब्स बना के रखे हैं, तो टू मीट देयर एक्सपेंसेस दे नीड स्टूडेंट्स। एंड ये सब कॉलेज की बात है, सॉरी। हाँ, ओके, गो अहेड, गो अहेड। इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड, इवन इफ यू डिड नॉट राइट द एग्जाम, जो भी लेफ्ट ओवर सीट है वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग में उनके पास में 60 सीट है और पूरे काउंसलिंग में है ना 45 बच्चे 55 बच्चे आए और एक 5 सीट खाली है, समझो, दे आर गोइंग टू गिव यू।
ये लास्ट ईयर का सिनेरियो कुछ है क्या इस बारे में? हाँ, ये 4 कॉलेज में? लास्ट ईयर में भी है ना, उन लोगों के पास में जो सीट्स बच गए थे वो दिए थे। तो अब कौन से कॉलेज में भी दिए थे वो एग्जैक्टली अपने को भी नहीं मालूम है। बट यू कैन जी डायरेक्टली कांटेक्ट द कॉलेज, कॉलेज वालों को सीधा जाके पूछ सकते हैं कि है ना मेरा ये सिचुएशन है, ये साल जी तुम्हारे पास में कोई सीट मिल सकती क्या। कोई ना कोई कॉलेज में तो मिल जाती, लेकिन कौन से कॉलेज में मिलती वो अगेन अभी कोई भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। पूरे एडमिशन जब हो डिपेंड जाते ऑन हैं जब पता चलता। द ब्रांचेस भी डिपेंड रहता है, जैसा कि सिविल है, करेक्ट। माय सन इज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल। राइट। सो सो इस पे भी डिपेंड रहता है तो दे देते हैं हम लोग, ऐसा यही बोल रहे हैं क्या आप? राइट, जी वो बात है। और दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हारे को है ना, अगर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छी सीट चाहिए, तो एक जी साल कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी हाँ, के जो 35-40 साल की जो कैरियर की लाइफ है, उसमें एक साल जी एक्स्ट्रा लगा दो, फिर से पढ़ो। नेक्स्ट ईयर है ना अच्छा रैंक है तो फिर मिल जाती सीट। यस, सही बात। जी सर और हाँ। दूसरी थोड़ा बहुत जूम अहम आउट चीज करिए ना ये सर, है, पीडीएफ पे एक अस्सलाम चीज वालेकुम पूछना था। सर। अहम चीज ये है इन कंटिन्यूशन टू द लास्ट क्वेश्चन। आप बता रहे हैं कि बच्चे को सिविल का प्रिपरेशन कर रहा, तो बच्चा अगर कर रहा था तो व्हाट वाज द बॉटलनेक? एमसेट में रैंक नहीं आया, वो आइडेंटिफाई हुआ, एनालाइज करे, आपको टाइम नहीं दे सका बच्चा या इंटरेस्ट नहीं था, वो एनालिसिस एज ए पेरेंट हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे को सिविल में इंटरेस्ट है तो फिर उन्हें एमसेट क्लियर क्यों नहीं कर सका उन्हें? व्हाट वाज द बॉटलनेक? ये शॉर्ट टर्म कोचिंग लिए थे जी। हाँ, दैट मीन्स आप लेट डिसाइड करे कि भाई हमको एमसेट भी देने का है। दैट्स द पॉइंट। तो हमेशा रूट कॉज एनालिसिस जो है ट्राई करना कि भाई हमारी आखिरी पहली गलती कहाँ से शुरू हुई थी जिसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुंचे। तो जैसा फसी भाई पता है, बहुत हिम्मत का काम है लेकिन आसान काम है। एक साल इज नॉट ए डिफिकल्ट टाइम फॉर नेक्स्ट 50 years। अगर वाकई बच्चे की जो है इंटरेस्ट है सिविल में, देन गिव हिम टाइम टू अपियर फॉर 1 more year, और उन्हें इंशाल्लाह टॉप कॉलेज में ला सकता, फ्री सीट भी ला सकता और नेशनल लेवल पे। जी जी जजाकल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर ये सर। दो लोग बोल रहे हैं, कोई कोई एक बोलिए। हाँ। सर ये स्पोर्ट्स पढ़ा का क्या प्रोसेस है एमसेट में? स्पोर्ट्स कोटा तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें है ना, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ये शायद स्पोर्ट्स कोटा है शायद ये। यस सर। हम्म। तो स्पोर्ट्स कोटा में भी है ना तुम्हारे को एडमिशन मिल सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में सीट्स बहुत कम रहते हैं। तो जो लोग जो स्टेट लेवल के गेम्स खेल के आ रहे हैं उन लोगों को तुम्हारे को फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। जो लोग नेशनल लेवल पे खेल के आ रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। उसके बाद मैं में जो नेशनल में खेल के आया सर। राइट राइट, तो डेफिनेटली तुम्हारे को स्पोर्ट्स कोटा में भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यू यू हैव टू सी कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो शीट दिखा रहा हूँ ये कॉलेज जो है, इफ आई गो हियर, दिस इज महात्मा गांधी एमजेआईटी का ये रिजल्ट्स है 2024-25 लास्ट ईयर का है ये। तो यहाँ पे है ना स्पोर्ट्स कोटा में इन लोग किसी को भी एडमिशन नहीं दिए। यहाँ पे एक 127,000 को सीट मिली है। ये कौन सी सीट है? दिस सीट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट थी वो। और इफ आई गो लिटिल डाउन हियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट जो है स्पोर्ट्स कोटा में 131,000 को मिली है। तो यू हैव टू डिसाइड कि है ना तुम्हारे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से तुम है ना काउंसलिंग में फॉर्म फिल करो। फिल करने के बाद में वो मिले तो मिल जाती, नहीं मिले तो कोई दूसरी और चीज मिल जाती। सर लेकिन इसका प्रोसेस क्या है सर, स्पोर्ट्स कोटा कैसे अप्लाई करने का सर? प्रोसेस कुछ भी नहीं, जब तुम काउंसलिंग का जब टाइम आता, ऑनलाइन फिल करना है राइट काउंसलिंग का। मे बी आफ्टर 15 days और 1 month, जब कभी भी है ना काउंसलिंग लेकिन का। लेकिन ये एसजी इज नॉट स्पोर्ट्स कोटा। आई एम क्या है वो? चेकिंग ऑन द इंटरनेट, इट्स सब ग्रुप। सब ग्रुप है, ओके। सो एसजी इज नॉट स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको एनसीसी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो ऐड होता। नहीं एनसीसी की अगर ट्रेनिंग बच्चा लिया हुआ है इन द स्कूल और इन द कॉलेज रिसेंट, तो वो ऐड होता। हाँ, ये सर्टिफिकेट, दिस इज स्पोर्ट्स नहीं, एंड ये स्पोर्ट्स एथलेटिक्स। स्पोर्ट्स नहीं है। ये एनसीसी इज मिलिट्री ट्रेनिंग, इज ए नेशनल, यस, एनसीसी। नेशनल कैडेट क्रॉप्स। तो इसी में स्पोर्ट्स, क्योंकि एसजी का जो है फुल फॉर्म कुछ और आ रहा। हाँ, तो फिर शायद इसमें ये शीट में स्पोर्ट्स कोटा के बारे में उन लोग हमारे को डिटेल्स नहीं दिए कॉलेज वाले। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, जैसा ये इतने पूरे हाँ होता, कोटा है मगर वो वैसा एसजी स्पोर्ट्स का कोटा फुल भी। फॉर्म स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, वही बोलना नहीं है, चाहता। ओके एसजी इज ठीक समथिंग ठीक। एल्स, सब ग्रुप है उसका ओके ओके। फुल फॉर्म हियर। सर जिसको भी स्पोर्ट्स यहाँ कोटे पर में एडमिट करना है उन्होंने नेशनल्स खेलना पड़ता। नेशनल्स का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जस्ट पार्टिसिपेट नहीं, विनिंग सर्टिफिकेट अगर है तो आपको स्पोर्ट्स कोटे के लिए आप एलिजिबल हो।
और ये सब कॉलेज के पास रहता कुछ पॉइंट परसेंटेज कि एक 1% पूछता था। तो अगर उसके पास कैंडिडेट नहीं आए तो ऑब्वियसली वो सीट खाली रहती, वेकेंट रहती। आए कैंडिडेट एप्लीकेंट्स एडमिशन नहीं हो सकता। सर सीबीआईटी को गए थे बात करने के आज से, लेकिन उन लोग कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिए। हाँ, उनको नहीं मालूम है इसलिए उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं करे होंगे। वहां पे जो जिससे भी आप मिले हैं रिसेप्शन पे या वगैरह जहाँ पे भी आप मिले उनको आइडिया नहीं होगा। आप क्या करो, जो एमसेट की इसलिए पहले जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का पार्ट होता उसमें जाओ, जाके आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कराओ। स्पोर्ट्स के जो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो भी लेके जाओ। लेके जाके बोलो आई वांट टू गेट एन एडमिशन थ्रू दिस स्पोर्ट कोटा ओनली, हाउ एम आई एलिजिबल एंड वेयर शुड आई गेट, बोल के उनसे पूछो। उन्होंने थोड़ा सजेस्ट करते हैं, उनको मालूम है तो बोलते, नहीं तो द पर्सन हु नो अबाउट इट दे विल गाइड यू टू दैट पर्सन। तो उनसे बात करिए, हो जाएगा। और हर सेंटर पे एक वहाँ पे वीसी रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके सर। एक तो वो चीज है, दूसरी चीज जब काउंसलिंग का जब टाइम आता है, तो तुम है ना जब काउंसलिंग का जब ऑनलाइन फिल करते रहते हैं उसमें है ना तुम्हारे को पूछता है कि तुम कौन से कोटा में फिल करना चाह रहे हैं। तो तुम स्पोर्ट्स कोटा चूज करो, चूज करके कॉलेजेस को चूज करो। अगर तुम है ना कोई कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा एडमिशन मिल जा रहा है तो दे देते हैं लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा की जो सीट्स है बहुत कम होते हैं। दे आर वेरी फ्यू सीट्स, लाइक मे बी 1% और समथिंग। तो एग्जैक्टली सची है, राइट। जो काउंसलर है उन लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में सीट्स अलॉट करना है। तो किसी न किसी कॉलेज में तुम्हारे को उन लोगों का अलॉट कर देते हैं। तुम्हारे को कौन से कॉलेज में होना तुम फिल कर दो बस। ओके सर। सर अस्सलाम यहाँ वालेकुम पर सर। थोड़े थोड़े रैंक्स के नीचे, मतलब ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक है ना सर हर कैटेगरी का। हाँ तो अब जैसा सिविल का ये ओसी है, हाँ इसमें फर्स्ट रैंक बता रहा, हाँ। लास्ट रैंक की जगह पे डैश बता रहा, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा अप्लाई करा था नहीं नहीं, ओपन कैटेगरी में सिविल के लिए। 39,338 वाला जो रैंक है वो सिविल इंजीनियरिंग लिए इनके कॉलेज में। उसके बाद में कोई भी नहीं लिए तो उन लोग है ना जो एमसेट नहीं लिखे उनको भी दे दिए, जो लोग फेल भी हुए उनको भी दे दिए बोलने का। हम्म। ऐसा है वो। तो मतलब ओपन कैटेगरी में तो एक ही अप्लाई करे, तो अपन वो हिसाब से भी देख सकते कि यहाँ पर कम अप्लाई कर रहा है। राइट राइट। देखो ये सब चीजों के बारे में है ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे को समझ में आ रहा है कि है ना, आप समझो तुम्हारा रैंक है 35,000 तुम्हारा रैंक है, तो ओसी अगर तुम है तो एमजीआईटी में तुम्हारे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस है या नहीं। तो तुम्हारा समझो 35,000 तुम्हारा रैंक है, और यहाँ पे समझो 4,800 में तुम्हारा ये 11,000 में सीएससी क्लोज हो गया एमजीआईटी लास्ट ईयर। ये साल शायद तुम्हारे को 35,000 रैंक होने के बावजूद भी एमजीआईटी में सीएससी मिलता होगा, नहीं मालूम। तो तुम जब काउंसलिंग के जब ऑप्शंस फिल करते रहते हैं तो तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि है ना नहीं करना बोल के नहीं है। तुम्हारे को नहीं मिलता होगा, दैट्स फाइन। तुम्हारे को जो चाहिए तुम फिल करो। ओके। उस दिन जब काउंसलिंग का जब फिल करना रहता तो तुम्हारे को खाली 2-3 ऑप्शन फिल करो बोल के नहीं रहता, तुम है ना 15-20 ऑप्शन पे फिल कर सकते तुम। सबसे अच्छा जी कॉलेज सर। सबसे अच्छा कोर्स तुम फिल करो, मिल गया तो दे देते हो लोग। और एक चीज स्पोर्ट्स कोटे के रिलेटेड, और ये जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है ये लोग का एक अलग सेंटर रहता है, और स्पोर्ट्स और एनसीसी वालों के लिए अलग से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता, और काउंसलिंग की डेट भी अलग रहती है लोगों की। इस पे भी थोड़ा सा गौर करिए, जो भी स्पोर्ट्स कोटा या एनसीसी कोटे में जाना चाह रहे हैं उसके लिए। ओके। वालेकुम सर। ये हमारे अस्सलाम हेलो वालेकुम सर। अस्सलाम सर। हाँ बोलिए। हाँ सर मेरे को 25,300 रैंक आया सर। हाँ वर्धमान वर्धमान हो गया, एमजे हो गया, मल्ला रेड्डी, ऐसा मैं 4-5 कॉलेज ऐसा देख के रख लिया था। राइट। आपके हिसाब से मैं कौन सा कॉलेज जाना, सीएससी ब्रांच के? यहाँ पे ये लिस्ट है देखो, मैं तुम्हारे को फिर से शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन। एक तुम्हारा बोले वर्धमान, वर्धमान कॉलेज का रैंक जो है 15 है। और कौन सा कॉलेज था? सर मल्ला रेड्डी। ओके, जस्ट टेक ए पेन पेपर। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि है ना वर्धमान का नंबर है 15 और मल्ला रेड्डी का नंबर है
मल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज का 26 है। अगर तुम्हारे को वर्धमान में सीट मिल रही तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मिल रही तो तुम है ना मल्लारेड्डी में एडमिशन, ऐसा हमारे को चूज करना है। जब चॉइसेस तुम जब चूज करते हैं, काउंसलिंग के फिल करते हैं, तो टॉप में तुम्हारे को वर्धमान दिखाई देना, बॉटम में तुम्हारे को मल्लारेड्डी दिखाई देना, क्योंकि उन लोगों ऊपर से जो लिस्ट आ रही फर्स्ट वाली अगर तुम्हारे को मिल गई तो वो दे देते हैं उन लोग। तो मल्लारेड्डी पहले लिखे वर्धमान बाद में लिखे, समझो मल्लारेड्डी में मिल जाती, वर्धमान में नहीं मिलती तुम्हारे सीट, इवन इफ यू आर एलिजिबल यू डोंट गेट इट। अच्छा सर, इसमें एमजे नहीं है, इसमें ये लिस्ट में मुफक हमजा नहीं है। नहीं है। ये टॉप कॉलेजेस की लिस्ट है भाई, तो एमजे जैसे उसका रैंक 30 के अबाव ही आता रैंक, इसके लिए बोल के नहीं है वो लोग, नीचे रहता है अच्छा एमजे। सॉरी। जी हाँ, 50 आप 50 अपने रैंक के हिसाब से भी जाइए, और कॉलेजेस का भी रैंक रहता, फर्स्ट राइट कॉलेज नंबर 1 कॉलेज सीबीआईटी है, राइट। सेकंड ऐसा अलग 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 है, तो उस तरह के से आप इसलिए कॉलेज का भी सीक्वेंस देखिए। इसलिए फॉर दिस रीजन जितने यहाँ पे मुस्लिम्स है, डोंट जस्ट थिंक कि हमारे को माइनॉरिटी कॉलेज में लेके हमारे को माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ना है। गो फॉर मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज, गो फॉर मल्टीकल्चरल मल्टी डायमेंशनल कॉलेजेस, जहाँ पे आपको सारी डाइवर्सिटी मिले, तो ताकि वो एक्सपोजर, वो फियर फैक्टर निकलता। माइनॉरिटी जी हाँ कॉलेजेस को लास्ट ऑप्शन रखिए एब्सोल्युटली, अपने आपके पास। एब्सोल्युटली राइट, आई आल्सो प्रेफर द सेम व्हाट यू सजेस्ट जस्ट नाउ। यप। तो वो आपकी मर्जी है तुम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हम तुम्हारे को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट है, ये लिस्ट में तुम्हारे को रैंकिंग दिखाई देती है कि कौन सा कॉलेज टॉप है, कौन सा कॉलेज टॉप नहीं है। और तुम्हारे को कॉलेज की फीस भी देख लेना है कि है ना वो फीस कितनी है, वो फीस है ना माफ हो सकती क्या नहीं हो सकती। ये रिसर्च करने के लिए तुम्हारे पास अभी टाइम है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी। एक और एक चीज देखना भाई, अपने लोग क्या बोलते हैं, अपनी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़े लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ही छोटे समझ लेते हैं, इंटर होने के बाद भी बोलते हैं कि अरे मेरे बच्चे को मैं उतनी दूर नहीं भेजता कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस करीब नहीं रहते, थोड़ा दूर जाना ही पड़ता, तो वो भी बोलते हैं कि मैं ज्यादा दूर नहीं भेजता बोल के, तो भी थोड़ा देख भी चल रहे। अब ये सब फोबियास अपनी जगह हैं। मैं वारंगल में इंजीनियरिंग करा था उस जमाने में, वहां पे हर 2 दिन में ब्लास्ट होते थे। तो लोग बोलते थे कि है ना वहां पे इतनी पूरी गड़बड़ हो रही तो क्यों जा रहे हैं वारंगल को। बोले हमारी मर्जी है, मेरे को जाना है तो जाना है। 4 साल हम इंजीनियरिंग करके आ गए वारंगल से। उसी भाई, मैं सऊदी में 10th करा, इंटरमीडिएट आके यहाँ पे करा, मैं गुलबर्गा में जाके पढ़ा। तो गुलबर्गे में जब मैं पहली बार गया तो बिल्कुल कीचड़ में पैर चले गया था मेरा, गिर गया था मैं। सो मेहनत के लिए अगर तैयार नहीं है बच्चे और माँ बाप उनके ऊपर नरमी का नजर रख रहे हैं, तो आगे वाले जमाने में जो है फिर आप, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, नॉट ओनली टफ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो आप उनको मेहनत करना सिखाइए, मशक्कत करना सिखाइए, दुख दर्द दोनों के पहलू दिखाइए एज ए पेरेंट। और इंग्लिश में एक कहावत है कि डोंट प्रे फॉर इजी रेन, प्रे फॉर स्ट्रॉन्गर अम्ब्रेला। समझ गए होंगे बात को। और कोई क्वेश्चंस है? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये बोलिए। ये अगर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट फेज में मेरे को लॉर्ड्स में सीएससी में मिल रहा, लेकिन थर्ड फेज में वासवी से मेरे को बाय चांस एक सीट मिल गई सीएससी में, राइट। तो मैं फर्स्ट लॉर्ड्स में मैं मेरा बुक कर दिया पूरा, 10,000 रुपीज पे कर दिया बुकिंग के, फिर वो रिफंड मिल सकता? रिफंड नहीं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां के पैसे यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं अच्छा, तुम्हारे। ऑटोमेटिकली हो जाएंगे? हाँ ऑटोमेटिकली हो जाते, तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक लॉट्स यू में सर। जो 10,000 रुपीज तुम पे करे हैं, वो 10,000 रुपीज तुम्हारे को वासवी में थर्ड फेज में ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, अपने को कोई भी मैन्युअली जाके कुछ भी रिफंड करने पे की जरूरत पूछने नहीं की है तुम्हारे जरूरत को, नहीं? क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू काउंसलिंग, राइट। यस। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके थ्रू हो रहा है सब कुछ। ओके, ओके, थैंक यू सर। राइट। भाई वो और एक चीज, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग एंड थर्ड काउंसलिंग, थर्ड फेज जो भी रहता है, उसका थोड़ी सी नॉमिनल फीस भी रहती है आपको। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग के सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप एक नॉमिनल सी फीस पे करके सेकंड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, थर्ड के लिए भी ऐसा नहीं। लेकिन वो जो 10,000 रुपीज जो पे करे ना, वो कहीं नहीं जा रहे पैसे, वो तुम्हारे को दूसरी या तीसरी में जो भी सीट मिल जाती तुम्हारे को, वो सीट को पैसे ट्रांसफर हो जाते। ओके सर, थैंक यू। या और क्वेश्चंस है कुछ? या और अगर कुछ भी क्वेश्चंस सर नहीं है आप तो हाँ बोलिए। हाँ आपके पास कोई पीडीएफ है
2024 के पूरे कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज कट ऑफ? पूरे कॉलेजेस के पीडीएफ हमारे को नहीं मिले, लेकिन थोड़े कॉलेजेस के पीडीएफ मिले हैं। अब यहाँ पे मैं मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं सीबीआईटी का एक मिला मेरे को, एमजीआईटी का मिला मेरे को, मुफक्कमजा कॉलेज का मिला है, और वासवी का मिला है। तो देर आर लाइक 3-4 कॉलेजेस जिसका मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है। उसमें भी है ना, कोई कॉलेज वाले तुम्हारे को कैटेगरी वाइज दिखा रहे हैं, थोड़े कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि है ना खाली ये रैंक से ये रैंक तक मिला है। तो जो कुछ भी मिला वी हैव टू गो विद दैट, अब कुछ भी नहीं कर सकते अपन। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन If दे you रहे हैं दे allow रहे हैं। me, I will answer this question. बोलिए। तो भाई आपका आंसर ये है कि आपको चाहिए कि दो तीन जो फंसी हुए बता रहे तो है ही है। आपके पास और दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप खुद रिसर्च करिए, शायद आपको मिला तो मिल सकता है, नहीं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है, आप जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर पे जाएंगे, जो गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं, वो लोग एक बुक देते हैं आपको। बुक में लास्ट ईयर के रैंक्स भी रहते हैं, पूरे कॉलेजेस भी रहते हैं, कौन से कोटे में, कौन से रिजर्वेशन में, कौन से रैंक पे किस कॉलेज पे एडमिशन क्लोज हुआ, वो भी रहता है उसके अंदर। तो आप वो वेरिफिकेशन करवा लेके घर आने के बाद वो बुक सुकून से बैठ के 1 घंटे रिसर्च करिए, 1 घंटा देखिए बुक में, आपको आइडिया मिल जाता है एज पर योर रैंक, यू गो हेड विद द कॉलेज। तो देंगे वो लोग वहां पे एक आपको वो बुक, आप बहुत सारे लोग आप उसको लाके फेंक देते हैं या रख देते हैं, आप उसको थ्रो करिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन की जगह पर मिलता, बोले आप ये वो? नहीं नहीं, सुनो 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 एक। हाँ जी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम आप जब जाएंगे, वो लोग एग्जाम्पल फर्स्ट रैंक से लेके 20,000 रैंक तक के बच्चे मासाब टैंक पॉलिटेक्निक में आओ, फिर 20,001 से लेके 50,000 तक निजाम कॉलेज में आओ, फिर ये पॉलिटेक्निक, इस तरह से वो लोग सेंटर बताते हैं आपको, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, वो टाइप पे वो सेंटर पे जाना। आप पूरे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद 3 जीरोक्स सेट गए, तो आपका वेरिफिकेशन करके पूरा होने के बाद आपको बुक देते हैं वो लोग उनकी साइड से, तो वो बुक में सेटिस्फेक्शन रहते हैं आपको। लेकिन क्या है मालूम है, सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन इज टू लेट। तुम है ना ऑप्शंस फिल कर दिए, तुम्हारे पैसे पे कर दिए, उसके बाद में तुम्हारे को रैंक की बुक मिले तो तुम्हारे उसके तुम्हारे फायदे की नहीं है वो। तुम्हारे को फायदा अब होना है, राइट नाउ होना है। ऑप्शन फिल करने से पहले होना है कि मैं क्या ऑप्शन फिल करूं। हाँ, वो पहले ही होता फंसी भाई, वो टोटली एडमिशन के 3 स्टेप्स में नहीं एडमिशन नहीं होता नहीं, है भाई, काउंसलिंग के थ्रू। सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन कब होता मालूम है? तुम्हारा सीट अलॉट होने के बाद होता है। नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप में अपने को सर्टिफाइड वेरीफाई सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करवाना पड़ता है, तो एक चेकलिस्ट देते हैं उन्होंने अपने अपनी साइड से, जो हम्म बच्चे एलिजिबल है, गवर्नमेंट के काउंसलिंग कोटे के लिए एलिजिबल है, उसके हम्म लिए उसके सेकेंड स्टेप अपने को एक डेट दे देते हैं, जब अपने को ऑप्शन सेपरेट करना पड़ता है। 10 कॉलेजेस में लगा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो 10 कॉलेज 20 कॉलेज के ऑप्शंस लगाना पड़ता है ऑनलाइन पे। फिर थर्ड स्टेप में कोई एक कॉलेज आउट ऑफ योर सिलेक्टेड 10 कॉलेजेस में से कोई एक में अलॉट करके आपको अलॉटमेंट ऑर्डर देते हैं। देन फोर्थ स्टेज में अपन कॉलेज जाके बताना कि भाई हम ओके है, तो वी गॉट द अलॉटमेंट इन योर कॉलेज, वी वांट टू गेट एन एडमिशन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला नहीं, मेरा वेरिफिकेशन क्वेश्चन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन पहले होता है कि ऑप्शन फिल करना पहले होता नहीं, पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता सर। है? पहले पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के वेरिफिकेशन होता, बाद में ये होता। बाद बाद में ऑप्शन अपने को फिल करने की वो लोग बताते हैं। वो डेट पे अपन ऑप्शन ऑनलाइन कर देने का रहता है, ऑप्शन ऐड करने का। देन गुड। ओके ठीक है, वो तो होगी बात। आई हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन हियर। अभी समझो कि है ना, मेरे को सीबीआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन होना था, राइट? तो मैं क्या करा, सीबीआई की आईटी के वेबसाइट पे गया मैं। वेबसाइट पे गए तो वहां पे ये लिंक्स दिखाई दिए मेरे को, वहां पे प्रीवियस ईयर रैंक्स बोल के लिखा हुआ था। उसके बाद में मैं वो प्रीवियस ईयर रैंक क्लिक करे तो यहाँ पे है ना एडमिशन TGEAP सेट, ये हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके एडमिशन्स हुए। उसको क्लिक करे तो है ना यहाँ पे मेरे को पीडीएफ मिला। तो वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च। मैं ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ये रिसर्च कर लिए तो है ना तुम्हारे को खुद मालूम हो जाता कि है ना लास्ट ईयर के रैंक्स वो कॉलेज में कौन से थे। अब अगर तुम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए अगर जा रहे हैं, उन लोगों तुम्हारे को रैंक दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद में तुम्हारे को कोई परेशानी की बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले भी अगर चाहिए तो ये मिल रहा है तुम्हारे को, उनकी वेबसाइटों में मिल जा रहा है इन्फॉर्मेशन। कुछ कॉलेज वाले दिखा रहे हैं, कुछ कुछ कॉलेज वाले नहीं दिखा रहे। और तुम डायरेक्टली कॉलेज को अप्रोच करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो। उन लोग पैसे ले रहे हैं अपने पास में, इट्स नॉट लाइक कोई ऐसा हमारे को चैरिटी वर्क नहीं है वो।
आप जो बता रहे हैं एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट है। तो इस तरह से थोड़ा स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लिए तो क्या 4 साल की इंजीनियरिंग आसानी से होती है अच्छी जगह, फिर बाद में प्लेसमेंट के भी चांसेस अच्छी जगह। तो मेरे बोलने की बात यही है कि है ना, तुम अच्छे से अच्छा कॉलेज चूज करो जो तुम्हारे रैंक के हिसाब से है। अब मेरे को है ना उस्मान यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, JNTU में होना, मेरा रैंक है ना 69,000 है, वो तो नहीं मिलता। लेकिन वो 69,000 में करेक्ट। जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो ले लो, जहाँ पे तुम्हारे को अच्छी फैकल्टी है, जहाँ पे है ना अच्छे प्लेसमेंट्स है, वो कॉलेज ले लो। और क्वेश्चन? और भाई किसी का कुछ और सवाल है तो बताइए। वी हैव हसी भाई, सब कुछ है, हम लोग भी है, इंशाल्लाह वी विल। अस्सलाम सर। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि काउंसलिंग में अगर फर्स्ट फेज में एक अच्छा कॉलेज मिला और सेकंड से अपन उसमें लेके फिर सेकंड फेज में जा रहे, सेकंड फेज में अगर खराब कॉलेज मिला तो फर्स्ट फेज की सीट रहती है चले जाती? नहीं, चले आती। तुम है चले ना जाती भाई, सेकंड छोड़ देना सेकंड पड़ता है। फेज में तुम अच्छा कॉलेज ही चूज करो। ठीक है। फर्स्ट फेज में जो कॉलेज मिला है उससे अच्छा कॉलेज सेकंड फेज में चूज करो, उससे खराब कॉलेज सेकंड फेज में नहीं चूज करो। और एक चीज भाई, फर्स्ट फेज में ऑलमोस्ट 70% कॉलेजेस पूरे फिल हो जाते हैं, 60% कॉलेजेस। तो सेकंड फेज में ऑब्वियसली सेकंड रैंक वाले कॉलेजेस रहते हैं, फर्स्ट रैंक वाले मुश्किल से मिलते हैं। सेकंड फेज की क्या है मालूम है, लक की बात है वो। अब समझो कि है ना मेरा रैंक जो है 15,000 था, मैं है ना अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, मेरे को उससे भी अच्छा एडमिशन अगर मिल गया तो वो सीट खाली हो गई। वो अच्छा कॉलेज है, अच्छी सीट ही है। अब उसके बाद में 20,000 वाले अगर आके है ना वो सीट लेना चाह रहे हैं तो उनको वो मिल जाती जो मेरे को 15 में मिली थी, दूसरों को 20 वालों को मिल रही है वो सीट। समझ में आई बात? जी सर। तो जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना वो सीटें तुम्हारे सेकंड फेज में थर्ड फेज में मिलते हैं तुम्हारे। और जो लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, उनको सेकंड फेज में उससे भी अच्छी सीट मिल रही। समझे? तो सीट जब भी कभी सीट अगर सेकंड फेज में अलॉट हो रही तो अच्छी सीट अलॉट होती है, तो नेक्स्ट सीट अलॉट ही नहीं होती? अच्छी सीट चूज करो तुम अगर है ना खराब सीट अगर चूज करो तो अलर्ट हो जाती वो। ओके ओके तुम उसको ना नहीं बोल सकते फिर। ओके। नहीं सेकंड फेज अगर में मैं थर्ड फेज में तुम फर्स्ट फेज से भी अच्छी सीट होना है तुम्हारे को। अगर नहीं मिल रही तो नहीं चूज करो, तुम चूज ही नहीं करो। चूज ही नहीं करना। ओके। तो मगर ऑप्शन तो है कि यार अच्छी चीज मतलब चूज कर लेना, नहीं है तो चूज ही नहीं करना कुछ भी। राइट, तुम सेकंड फेज में जब फिल कर रहे हैं, ऑप्शन फिल कर रहे हैं, तो तुम है ना पहले वाली सीट से भी अच्छी सीट उसमें चूज करो, तुम दूसरी वाली नहीं चूज करो तुम उसमें। नहीं है तो उसको छोड़ देना। नहीं, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। ओके। तुम्हारा बताते नहीं उन्होंने ये है देखो चूज करो, बल्कि नहीं बोलते उन्होंने। सर कौन से कॉलेजेस कंप्लीटली फुल हो गए, कौन से नहीं हुए, वो ये भी नहीं बताता? नहीं बताते, कोई नहीं बताते वो। तुम अपनी तरफ से बोलना है कि मेरे को है ना इससे भी अच्छा वाला कॉलेज, इससे भी अच्छी सीट होना बोल के बोलना है। है तो दे देते, नहीं है तो नहीं देते। करेक्ट। अगर नहीं है तो फिर फर्स्ट सीट अपने को अलॉट हुआ है, फर्स्ट फेज में फर्स्ट जो तो लिए है वो तुम्हारे अलॉट हुआ नाम है। पे है, वो कहीं नहीं गई वो। हाँ ओके। थैंक यू सर। सर मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। बोलिए। अगर फर्स्ट फेज में हमें वासवी में CSC मिला, करेक्ट। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं सेकंड फेज के वास्ते भी ऑप्ट करा। ओके। सेकंड फेज की नॉमिनल फी दिया, उसके ओके। बाद सेकंड फेज में मेरे को CBIT मिल रहा, तो मैं फर्स्ट फेज की सीट कैंसिल करके सेकंड फेज में CBIT में जा सकता हूँ। तुम कैंसिल नहीं करने का है, तुम्हारे उन्होंने खुद कैंसिल कर देते हो। अच्छा। तुम्हारी को है ना जब उन्होंने CBIT अलॉट कर रहे हैं तो वासवी कैंसिल करके CBIT अलॉट करते हो। इसका अपोजिट हो सकता है, और CBI आप इसका अपोजिट हो सकता है सर। अगर मैं CBIT में लिया, हाँ। मैं देख रहा हूँ, हाँ। अगर मेरे को सेकंड फेज में अगर JNTU उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मिल सकता, मैं सेकंड, लेकिन नहीं मिला मेरे को सेकंड फेज में, तो मेरी फर्स्ट फेज की सीट कैंसिल हो जाती। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे को है ना फर्स्ट फेज में CBIT मिल गया था, सेकंड फेज में तुम है ना बोले JNTU में होना, और JNTU में नहीं मिल रही तुम्हारे को, तो तुम्हारी पहली वाली वैसी रहती। अगर JNTU में मिल रही तो तुम्हारी है ना CBIT कैंसिल होके JNTU मिलती तुम्हारे।
अच्छा ओके सर, ये डाउट था, थैंक यू। सर फर्स्ट बराबर फर्स्ट बराबर। फेज में अगर से, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, हाँ फर्स्ट फेज में अगर मिल गई सीट, तो अगर अपन ज्वाइन नहीं करके सेकंड फेज पे जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि सेकंड फेज में सीटें जैसा मोइज भाई बता रहे थे, तुम्हारे को हार्डली कोई सीटें बाकी रहते हैं। एटलीस्ट 70% 80% सीटें है ना पूरे फिल हो जाते हैं। जो भी अच्छे अच्छे सीटें हैं पूरे फिल हो जाते हैं। जो सेकंड फेज में जो है खाली बचे हुए सीटें क्या रहते हैं बोलते, सिविल के मैकेनिकल के जो भी कोई लोग नहीं चूज कर रहे हैं ना वो सीटें बाकी रहते हैं। कॉलेज कोई भी नहीं चूज कर रहे हैं ना वो कॉलेज बाकी रहते हैं सेकंड फेज में। लेकिन कभी कभी है ना किस्मत की वजह से तुम्हारे को है ना कोई एक सीट छोड़ दे के चले गए मिल जाती तुमको। लेकिन बहुत कम रहते हैं वो, लेकिन 1% 2% जैसी बात है वो। तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं फर्स्ट फेज में, कुछ भी नहीं चूज करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, अच्छा फंसी हुई, करेक्ट। सर, तो फिर इसको ज्वाइन कर लेके अपन सेकंड फेज पे भी जा सकते हैं ना सर? करेक्ट करेक्ट। उसमें रिपोर्ट करके फर्स्ट फेज के कॉलेज को। फर्स्ट फेज में जो चीज अलॉट हो गई, तुम उसको है ना हाँ बोल दो, 10,000 रुपीज पे कर दो। उसके बाद में ठीक है ना सेकंड फेज में तुम जो अच्छी समझ में आई वो डालो। मिल गए तो ठीक है, नहीं ठीक, मिल गए तो फर्स्ट फेज वाली तुम्हारे पास है। सही है। जज़ाकल्लाह। सर ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कितना दिन लगेगा? ऑलमोस्ट महीना शायद चलता, क्योंकि फर्स्ट फेज काउंसलिंग होती, उसके बाद में थोड़ा टाइम देते हैं उन लोगों को फीस भरने के लिए। फीस भर देने के बाद में फिर है ना ये कट ऑफ डेट हो जाती, तो फिर सेकंड फेज की है ना उन लोगों तुम्हारे को काउंसलिंग फिल करने का ऑप्शन देते हैं। उसके एक हफ्ता 4 दिन जो भी टाइम है। उसके बाद में फिर उसको है ना उन लोग पूरा रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, फिर लोगों को फिर 10,000 रुपीज पे करने का, नहीं तो कॉलेज चेंज करने का वो जो भी टाइम है वो देते हैं। तो एवरीथिंग हैपेंस इन फेजेस, फेज 1 फेज 2 फेज 3। तो ऑलमोस्ट महीना या 45 दिन का कुछ तो टाइम लगता है ये पूरे एडमिशन्स होने के लिए। जी हाँ, फंसी हुई, करेक्ट बताया आप। ऑलमोस्ट 40 दिन के करीब तो इजीली लग जाता है, इन बिटवीन 1 मंथ टू 40 डेज। तो ऐसे ही 10-10 दिन का एक एक स्लैब रहता है उनके पास। 2 दिन में 4 दिन में फर्स्ट काउंसलिंग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होते। 2 दिन उनको ऑप्शंस ऐड करने का मौका देते वो लोग। फिर 2 दिन अलॉटमेंट ऑर्डर्स रिलीज करते, 2 दिन फीस पे करते। इस तरह से 10 दिन में फर्स्ट काउंसलिंग होती। फिर नेक्स्ट 10 डेज में सेकंड काउंसलिंग, नेक्स्ट 10 डेज में थर्ड काउंसलिंग, इस तरह से टोटली लास्ट में आपको फाइनल ऑप्शन भी मिलता है। फिर से कुछ करना रहा तो लेफ्ट ओवर सीट्स के लिए बोल के माइनॉरिटी काउंसलिंग रहती है। तो 40 दिन का प्रोसेस है। अगर आप पूरा फर्स्ट डे से लास्ट डे देके तक नहीं आप सेटिस्फाइड है फर्स्ट काउंसलिंग में जो हो जा रहा हो, तो आपका पर्सनली आपका प्रोसेस 10 दिन में खत्म हो जाता है। 10 दिन में आपको एडमिशन मिल जाता है कोई कॉलेज में। अगर आप सेटिस्फाइड हो गए फर्स्ट काउंसलिंग में तो 10 दिन का प्रोसेस रहता है। नहीं आप फिर सेकंड में जा रहे हो तो फिर एक 10 दिन आपको वेट करना पड़ता है। फिर आप, ये है पूरा प्रोसेस डेज वाइज। और एक फिर एक प्रोसेस की बात करें आप, तो 1 मिनट में बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेज अगेन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डिपेंड्स ऑन द डेट्स एंड रैंक्स। रैंक के हिसाब से वो लोग सेंटर बताते, आपको डेट बताते। वो सेंटर पे उस डेट पे जाके आप अपने पूरे सर्टिफिकेट्स, एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ मैं आपको। 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 10th की टीसी जेरोक्स रहती, फिर और बोनाफाइड फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास। अगेन 12th का सर्टिफिकेट, इंटर का, इंटर बोनाफाइड, इंटर टीसी। उसके बाद में जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाह रहे हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट, अगर बीसीई है तो बीसीई, या कास्ट जो भी है एससी एसटी, और कोई ईडब्ल्यूएस के है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स लेना। जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनका सेंटर अलग रहता है, एनसीसी वालों का सेंटर अलग रहता है, उनकी डेट्स अलग रहती। तो इस तरह से ये सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ 1 या 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी रख लो, जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी सेफर साइड। और फिर उसका काउंसलिंग का आपका फीस रहता है अराउंड 1,000 रुपए। वो 1,000 रुपए 1,200 कुछ फीस रहती है, वो फीस ले लेके जाना, या तो फिर डीडी बन के या ऑनलाइन करके जाना। ये पूरा स्टेप रहता है फर्स्ट काउंसलिंग करवाने का, वेरिफिकेशन करवाने का। वो लोग क्या करते हैं, देखते देख के आपके एक चेकलिस्ट बोल के देते हैं वो लोग। चेकलिस्ट में क्या मेंशन करते हैं वो लोग, भाई ये बंदा सो एंड सो XYZ असलम है, असलम का 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, वेरीफाइड है बोल के टिक मारते हैं वो लोग। फिर इंटर का वैसी, टीसी वैसी, इनकम सर्टिफिकेट, इसी तरह से सारे सर्टिफिकेट्स पे टिक मारते हो लोग। और जो बच्चे स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे देख लेना कि स्कॉलरशिप स्टेटस यस और नो रहता है वहां पे। अगर उन्होंने यस बोल के मारे तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल रहते। अगर उन्होंने नो लगा दिए तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो ये सारी चीजें करके चेकलिस्ट लेना, वो जो मैं बुक बोला वो बुक लेना, लेके फिर उन्होंने बोलते हैं आपको कि भाई ये जो रैंक से फर्स्ट रैंक से 50,000 रैंक वाले
2 दिन में 20 से लेकर 22 तक के ऑप्शन ऐड कर दो इंटरनेट पे बोल ऑनलाइन के थ्रू। ये आपका ऑनलाइन इंटरनेट आईडी है, ये आपका आईडी का पासवर्ड है, आप इसको चेंज करो, ऑप्शंस ऐड करो बोल के बोलते हो लोग। तब अपन क्या करना, जैसा फसी में बताया आपको फर्स्ट स्टेप में वही बताया उन्होंने कि कॉलेजेस की कैसा रिसर्च करना, कैसा चेक करना, कैसा चूज करना बोले, वैसा आप कम से कम एक 10 कॉलेजेस की लिस्ट आपके हाथ में रेडी रहना। तो फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन होने के बाद चेकलिस्ट मिलती है आपको, वो लेके आ जाना घर को, डेट बोल देते, वो डेट पे आप लॉग इन करना करके फिर सेकंड स्टेप का प्रोसेस होता है ऑप्शन ऐड करने के। आपका दो होता ही काम है, आपको 2 स्टेप्स तक ही आपका काम है। फिर थर्ड स्टेप JNTU वाले जो काउंसलिंग वाले हैं वो लोग आपको एज पर योर रैंक, एज पर योर चॉइस, एज पर योर स्ट्रीम आपको एक सीट अलॉकेट कर देते। फिर वो सीट ले लेके आप क्या करना, टाइम देते 2 दिन 4 दिन का, अगर आप ओके है एडमिशन लेना चाह रहे तो ये कॉलेज में ये स्ट्रीम आपको मिल रही, जाइए कॉलेज को रिपोर्ट करिए बोल के बताते थर्ड स्टेप में। तो आप जाके थर्ड स्टेप में कॉलेज अगर ओके है तो रिपोर्ट कर लेना, ज्वाइनिंग फीस जो भी रहती थोड़ी बहुत दे लेना, अपनी सीट कंफर्म करवा लेना। बस ये स्टेप है पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप से लेके एंड, स्टार्ट टू एंड। अभी अभी तो है ना, काउंसलिंग के डेट्स अभी पब्लिश नहीं हुए, तो अभी कॉलेजों के बारे में, कोर्सेज के बारे में जो रिसर्च करना है रिसर्च करके रेडी बैठ जाओ। जब काउंसलिंग की डेट आती तो उसमें है ना एग्जैक्टली उन्हें बताते हैं कि है ना किस दिन करना है, किस दिन क्या करना है, कहाँ पे करना है, लोकेशन कौन सा है, हर चीज का इंफॉर्मेशन पूरे उसमें नोटिफिकेशन में होता है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर।